Hi guys, we're going to continue with another comprehension set और जिस तरह हमने पहले टेक्निक यूज़ की उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम दोबारा करेंगे। सो सबसे पहले जस्ट फर्स्ट रीडिंग हम करेंगे अपने इस पैसेज की। देयर इज़ मोर देन, बाय द वे यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर आएगा मोर देन, there is a more than a modicum of truth in the assertion that a working knowledge of ancient history is necessary to the intelligent interpretation of current events. But the sage who uttered these words of wisdom might well have added something on the benefits of studying, particularly the famous battles of history, for the lessons they contain for those of us who lead or aspire to leadership. Such a study will reveal certain qualities and attributes which enabled the winners to win and certain deficiencies which caused the losers to lose. And the students will see that the same patterns recur consistently again and again throughout the centuries. अब हम एक दफ़ा सवालात को जवाबात के साथ देखते हैं। पहला सवाल है, a person who aspires to lead could learn from the history of battle. What led the previous leaders to win battle? What made them lose a battle? The qualities and deficiencies of commanders of these battles, the strategies that they have evolved in the course of these battles. Second question is, in this context, intelligent interpretation of current events means rational explanation of events, appropriate understanding of events, intellectual outlook on future events, skillful interpretation of events. Third question is, the expression more than a modicum of truth means some truth, much truth, more than a small amount of truth, nothing but truth. Fourth question is, according to the writer, a study of famous battles of history would be beneficial to wise men, provide food to modern leaders for reflection, be more useful than a general knowledge of ancient history, help us understand the art of modern warfare. Fifth, a knowledge of history is necessary to interpret current problems because they have roots in the past, they can be contrasted with past events, they may be repetitions of past events, only then they can be put in a proper context. तो अब हमें आइडिया है कि पैसेज भी क्या है, सवालात भी क्या हैं। अब हम इसकी एक्टिव रीडिंग करते हैं स्लो। There is more than a modicum of truth in the assertion that a working knowledge of ancient history is necessary to the intelligent interpretation of current events. कि जो working knowledge है हिस्ट्री का वो important है intelligent interpretation of current events के लिए। But the sage who uttered these words of wisdom might well have added something on the benefits. वो कह रहा है कि इनके अलावा भी जिसने ये बात की थी उसको एक और चीज़ के ऊपर भी रोशनी डालनी चाहिए थी। On the benefits of studying particularly the famous battles of history. Famous battles of history के ऊपर भी emphasize करना चाहिए। क्यों? For the lessons they contain for those of us who lead or aspire to leadership. कि वो लोग जो leaders हैं या leader बनना चाहते हैं उनके लिए लेसन्स हैं, ख़ास तौर पे किस चीज़ में, बैटल्स ऑफ हिस्ट्री के अंदर। सच ए स्टडी विल रिवील, ये रिवील क्या करेगी स्टडी? क्वालिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स विच इनेबल्ड द विनर्स टू विन, कि जो जीतते थे, जो विनर्स थे, जो फाते ठहरे, वो क्यों उनको फतह मिली। एंड सर्टन डेफिशेंसीज विच कॉज द लूजर्स टू लूज, और हारने वालों में ऐसी कौन सी कमियाँ और कोताहियाँ थी जिसकी वजह से वो हारे। एंड द स्टूडेंट विल सी दैट द सेम पैटर्न रिकर कंसिस्टेंटली, और यही पैटर्न जो है कंसिस्टेंटली रिकर करता है। वो हमें नज़र आएगा कि वो कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से कुछ लोग जीतते हैं और जो कुछ लोग हारते हैं वो कुछ कमियों की वजह से हारते हैं। कंसिस्टेंटली अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द सेंचुरीज ये पैटर्न आपको नज़र आएगा। अब हम इंडिविजुअली हर सवाल की तरफ जाते हैं। अ पर्सन हु एस्पायर्स टू लीड कुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बैटल। पहला जवाब, क्या उसे मिलेगा हिस्ट्री लीड ऑफ बैटल पढ़ने से? व्हाट लेट द प्रीवियस लीडर्स टू विन अ बैटल, हाँ ये पता तो चलेगा, यही पैसेज में भी लिखा है। व्हाट मेड देम लूज अ बैटल, ये बात भी पैसेज में लिखी है कि उसको ये भी पता चलेगा व्हाट मेड देम लूज अ बैटल। ऑप्शन सी, द क्वालिटीज़ एंड डेफिशिएंसीज ऑफ कमांडर्स ऑफ दिस बैटल्स, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें है क्योंकि इसमें ये दोनों बातें शामिल हैं। लीडर्स क्यों हार जीते और हारने वाले क्यों हारे। द स्ट्रैटेजीज दैट दे हैव इवॉल्व्ड इन कोर्स ऑफ दिस बैटल्स, इसका तो ताल्लुक ही नहीं है, तो ये सी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ करंट इवेंट मीन्स रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स। अब ये बड़ा ठीक जवाब लग रहा है क्योंकि रैशनल जो है वो बड़ा क्लोज है इंटेलिजेंट के। दूसरा है सूटेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स।
सूटेबल अंडरस्टैंडिंग में दो बातें, एक तो ये कि करंट का यहाँ पे किस इवेंट की बात हो रही है, करंट, पास्ट, फ्यूचर, ये क्लियर नहीं है। दूसरा, सूटेबल का मतलब होता है मुनासिब, मौजू, अप्रोप्रिएट, मगर ये इंटेलिजेंट के इतना करीब नहीं है सूटेबल लफ्ज़ जितना रैशनल करीब है, तो ये भी आपका बाहर हो गया। इंटेलेक्चुअल आउटलुक ऑन फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स की तो बात ही नहीं हो रही, करंट इवेंट्स की हो रही है। स्किलफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, अब ये भी टेम्पटेशन देगा आपको, लेकिन स्किलफुल से क्या मतलब है? स्किलफुल इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि स्किलफुल इंटरप्रिटेशन तो वो एक बड़ी वेग टर्म है ना। स्किलफुल इंटरप्रिटेशन तो ये भी हो सकती है कि मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए स्किलफुली एक चीज़ को इंटरप्रेट ऐसे करूँ कि वो मेरे फ़ायदे में जाए। लेकिन इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन का मतलब है रैशनल, कि आपको एक्चुअल चीज़ का पता हो कि क्या हो रही थी। तो रैशनल एंड इंटेलिजेंट आर मोर क्लोज, स्किलफुल एंड इंटेलिजेंट आर नॉट दैट क्लोज। तो इसलिए ये मिलते जुलते ज़रूर हैं, बट ए सीम्स मोस्ट suitable answer. The expression more than a modicum of truth means, modicum of truth का मतलब होता है कि कुछ, modicum का मतलब होता है थोड़ी तादाद में, some amount. तो modicum of truth means some amount of truth. More than a modicum of truth will mean more than a small amount of truth. According to the writer, a study of famous battles of history would be beneficial to wise men, provide food to modern leaders for reflection, be more useful than a general knowledge of ancient history, help us understand the art of modern warfare. ये तो बिल्कुल ही मॉडर्न वॉरफेयर के ऊपर तो वो कह ही नहीं रहा सीखने के लिए। बी मोर यूजफुल देन अ जनरल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, क्या उसने ये कहा है कहीं पर कि जो लीडरशिप, ये बैटल्स हैं, बैटल्स ऑफ हिस्ट्री, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंशंट हिस्ट्री से, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री से? उसने ये नहीं कहा कि कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने सिर्फ ये कहा था कि जो एंशंट हिस्ट्री को कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, उनको ये भी कहना चाहिए, उनको ये भी एम्फसाइज करना चाहिए कि बैटल्स ऑफ हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन उसने कहीं नहीं किया कि ये ज़्यादा यूजफुल साबित होंगी। इस पूरे पैसेज में आपको लगे शायद ये कि शायद वो कह रहे हैं कि बैटल ऑफ हिस्ट्री ज़्यादा है, लेकिन उसने कहीं पर भी ये बात नहीं की। तो इसीलिए ये ट्रिक आंसर उसके अंदर दिया हुआ है, ये इसीलिए गलत है। बी बेनिफिशियल टू वाइज मैन, अब वाइज मैन के लिए बेनिफिट की जो उसने बात की थी वो वर्किंग नॉलेज ऑफ एंशंट हिस्ट्री की बात की थी। अब वर्किंग नॉलेज ऑफ एंशंट हिस्ट्री इज नेसेसरी टू द इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ करंट इवेंट्स। जब वो बैटल्स ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहा है तो बैटल्स ऑफ हिस्ट्री के लिए वो उन लोगों की बात कर रहा है कि लेसन्स फॉर दोज हु लीड और एस्पायर टू लीडरशिप, लीडर्स के लिए बात कर रहा है। सो ये ऑप्शन प्रोवाइड फूड टू मॉडर्न लीडर्स फॉर रिफ्लेक्शन, कि उन्हें अपनी जो है वो इवैल्यूएशन करने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें वो क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स पता चलेंगे कि क्यों लीडर्स जीतते हैं और क्यों लूजर्स हारते हैं, और ये रिपीट करता है हिस्ट्री में। तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट करेक्ट। लास्ट, अ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ नेसेसरी टू इंटरप्रेट करंट प्रॉब्लम्स। सॉरी, इसके अंदर मैं आपको वो दोनों ऑप्शंस नहीं दिखा सका, but anyways this was a rather easier one. A knowledge of history is necessary to interpret current problems because they have roots in the past. nahi. They can be contrasted with the past event. nahi. Only then they can be put in proper context की बात ही नहीं हुई। तो ऑप्शन सी जो है, they may be repetitions of past events, ये तो उसने बड़ा clearly कहा है, and the students will see that the same pattern recurs consistently again and again throughout the century. तो ऑप्शन सी जो है हमारा इस फिफ्थ आंसर का, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप लोग जो हैं वो डिफरेंट जितने भी प्रॉब्लम सेट्स हैं कॉम्प्रिहेंशन के वो सॉल्व कर सकते हैं। गो स्लो, आराम से उसको समझने की कोशिश करें। अगर एक सवाल आपको नहीं अटेम्प्ट हो रहा, यानी दूसरा सवाल की नहीं समझ आ रही, तो तीसरे चौथे पे चले जाएं, हो सकता है अगला सवाल आसान हो, और जब वो सवाल आपके एलिमिनेट हो जाएंगे तो आप पे प्रेशर कम होगा, तो आपको ये करना भी आसान होगा। सो आप जितना उसको आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करेंगे, बार बार पैसेज को रीड करेंगे। अगर कोई पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट सेंस नहीं बना रहा, तो उसको बार बार आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करें, वो इट विल मेक सेंस एंड देन इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू गाइज टू solve and get to the right answers.